So hi everyone, finally wait is over for economics students. So we have one student here who has given the economics exam. Hi Tanishka, how are you? I'm all right. So आप इस टाइम स्टार हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअली में कुछ दिनों में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का टेस्ट देने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स. सो इकोनॉमिक्स में आपके 3 एरियाज हैं, माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट. सो तनिष्का, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस एरिया से आए थे? Indian economic and development में से. Okay. So in Indian economy and development, what all areas you could see, what all chapters you could see in the CUET exam? Human capital formation and railways portion and as well as poverty portion were the major portions that came into the exam. So were there any questions from the India on the eve of independence and LPG reforms? Yeah, it was based on the railways that the Suez Canal was formed when was the railways introduced in India. So it was more or less infrastructure question, right? Infrastructure was the major portion. Even in the development portion were mainly focused there. Okay. So even there is one chapter that is development experience between India, China and Pakistan. So was there any question into that? Yes, it was based on China's history. Okay. And talking about microeconomics, because there is one particular topic which is given by CUET, which is theory of consumer equilibrium. So apart from theory of consumer equilibrium, other chapters were excluded from CUET syllabus. So have you seen any question coming from markets and market equilibrium? Just one for monopoly question, that which kind of market is there in monopolistic, monopoly or oligopoly. Okay. So one question was still there from monopoly on, you can say from the forms of market. So ideally आप लोगों को forms of market भी करके जाना चाहिए. It can be done in the extra portion like left as question, so it's not such a big deal for that. Okay. So tell me something about demand and supply. कौन से किस type के questions आए थे? Demand curve, supply curve and the relation between the both. And the equations of the both the curves were most important question I found there. Elasticity? Elasticity was just 1-2 questions like which level of elasticity, is it greater or lesser, just that. Okay. And speaking of macroeconomics, as macroeconomics is more of a numerical type of subject. So macro में से आपको क्या लगता है कि easy थे या difficult थे? It was equal as difficult question goes for numericals of Indian economy, national income. Okay. And national income was just 4 to 5 questions but with the difference of net and gross portion. Okay. So national income में से भी अगर हम कहें तो practical कम था, theoretical ज़्यादा था. Theoretical ज़्यादा था. And practical was like आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी solve करने की, mostly oral portion था न्यूमेरिकल में भी. अच्छा. सो एक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स थोड़ा पूछ लेते हैं. सो क्या उसमें से कुछ ऐसा था? लाइक नेट एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं या कम हैं, लाइक एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का डिफरेंस भी था उसमें. ओके. एंड जैसे आपका मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये कुछ आपके लास्ट मैक्रो के चैप्टर्स हैं. सो इसमें आपको कुछ डिफिकल्टी आई क्वेश्चन फेस करने में? Yes, because multiplier का rate नहीं दिया हुआ था and still we had to find the equations based on the previous chapter equations. Okay. So it was just a time consuming questions but not a difficult one. सो ओवरऑल आपका जो अटेम्प्ट था वो टाइमली कंप्लीट हो गया था? टाइमली था और टाइम से इवन पहले हो गया था. इजी था क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि आपको मंथ की प्रिपरेशन चाहिए, जस्ट 2 to 3 days रिवीजन फॉर द होल सिलेबस विल बी इनफ फॉर इट. ओके. जैसे आपने बोर्ड्स का प्रिपेयर किया था, सो बोर्ड्स में और सीयूईटी में आपको सिमिलैरिटी कुछ लगा? इट वॉज सिमिलर बट आई वुड से कि इजी है बोर्ड से ये बहुत ज्यादा. ओके. सो कमिंग नेक्स्ट तनिष्का, बिकॉज आपने अकाउंटेंसी का भी क्वेश्चन दिया एंड लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स आर एक्चुअली वांट टू नो कि अकाउंटेंसी में कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो कितने आए थे? कंप्यूटर बेस्ड पर 5 to 6 questions. ओके. एंड क्या आपने सॉल्व किए कंप्यूटर क्वेश्चंस? मैंने नहीं किए बिकॉज मैंने वो सिलेबस चूज ही नहीं किया था. +2 में भी मुझे नहीं पता था. सो आइडियली आउट ऑफ 56 क्वेश्चंस तो आपका ऑलरेडी गॉन हो गया. यस. ओके. सो टॉकिंग अबाउट द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल पार्ट, सो अकाउंटेंसी में मैक्सिमम पोर्शन किसका था? प्रैक्टिकल का ज्यादा था. ओके. सो प्रैक्टिकल का ज्यादा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमें बता रहे थे कि थ्योरी का ज्यादा था. सो व्हाई इज दिस कॉन्फ्लिक्ट? इट्स जस्ट दैट कि अगर आप
पार्टनरशिप वाला लेते हो तो आपको प्रैक्टिकल ज्यादा लगेगा, और सेकंड एंड थर्ड वॉल्यूम लेते हो तो थ्योरी ज्यादा है. सो वी कैन कंसिडर जो प्रैक्टिकल आया था दैट वाज आल्सो मोर थ्योरेटिकल बेस्ड, क्योंकि जर्नल एंट्रीज पूछी जा रही थी. दैट्स ट्रू, बिकॉज आपको पहले प्रैक्टिकल सॉल्व करना था, फिर थ्योरी पोर्शन पे जा रहे थे. ओके. एंड स्पीकिंग ऑफ कोर्स डिबेंचर से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि डिबेंचर से हमारे पास थ्योरी आई थी. सो कैन यू एक्सप्लेन किस तरह की डिबेंचर से थ्योरी थी? डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट था, कैश फ्लो में डिबेंचर्स कैसे शो करेंगे, कैश फ्लो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, वो सब था. डिबेंचर्स पे हम कैसे डिबेंचर्स को फाइनलाइज करते हैं आगे बैलेंस शीट में, वो सब आ रहा था. एंड शेयर कैपिटल का जैसे कुछ रिव्यूज थे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन था एंड 4-5 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन टू दैट. इज दैट सो? Yes, share capital was majorly 5 questions. Okay. And mostly it took my 10 minutes I guess, because उसमें pro rata allotment calculate करना था, जिसमें से हमें pro rata allotment की रेशो भी नहीं दी हुई थी. अच्छा. So that was much a difficult task for that. सो 4 फीचर एंड री इशू के क्वेश्चंस थे कुछ? वो सब इंक्लूड था, वो 5 questions थे, उसमें से pro rata के बेस पे ही 4 फीचर और री इशू भी था. ओके. सो दैट मीन्स ऑफ कोर्स आई कैन इमेजिन कि थोड़ा सा आपको टाइम लगा होगा. सो एनपीओ का आपका कैसा अटेम्प्ट रहा? NPO was easy, like मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन से आया है था, या तो फिर कैपिटल मैनेजमेंट से आया था. सो सब्सक्रिप्शन या फिर फंड से आपका फंड बेस्ड क्वेश्चन था. एंड व्हाट अबाउट द रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, पार्टनरशिप पार्ट? It was just one question for reconstitution, majorly 2 questions for admissions. Just partnership was just for 2 to 3 questions. ओके. सो एडमिशन से 2 to 3 क्वेश्चन. देन फ्रॉम रिटायरमेंट एंड डेथ कितने क्वेश्चन होंगे एवरेजली? 1 or 2 questions. ओके. सो एंड फ्रॉम द डिसोल्यूशन? Dissolution, no question was there. ओके. सो डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस Just one question for realization. मतलब overall partnership portion, it came for 6 questions, as much as I remember. Okay. So what are universities you are targeting, Tanishka? DU, I have filled for DU and Ambedkar University. Okay. Thank you so much, Tanishka. Thank you for the reviews. Thank you.